Hello everyone, welcome to SwiftLearn, India's most sincere learning destination for classes 1 to 10. My name is Jagrat and here I am with the second part of the ongoing series Coordinate Geometry for class 9, ICSE and CBSE. For those of you who are new to this channel, let me tell you something about SwiftLearn. SwiftLearn provides 100% live interactive classes. Personalized attention is given to every student by having a batch limit of 6 students per batch, a dedicated acad mentor team that will track your progress, and we cover whole syllabus based on the latest pattern of ICSE and CBSE. And so we are also having detailed progress report of your journey at SwiftLearn, like from your first test till your last test. We have the SATs so that you can rank yourself among the other students of SwiftLearn. We have unlimited practice test series so that you can work on yourself continuously, and subjective assessment as well, so that we can provide you a feedback regarding your answer writing skills. So if you have not already subscribed and pressed the bell notification, please do that so that you never miss a future update just like this one. So guys, let's move on to the second part of the series, coordinate geometry. The first part was quite easy one, right? We understood regarding the what was the plane, what was the Cartesian plane, and then we understood that how to what is an ordered pair and how to mark a point in the Cartesian plane. So first we will recall that how to plot the points on the Cartesian planes. Then we will move on to the next topic, that is straight line and parallel graphs. How a straight line is obtained, how a parallel line is obtained, and what is the significance of that, and what really is a linear equation and what does it means. Okay, so are you get excited? And those of you who have missed the first part, don't worry beta, in this part everything will be covered. Okay, we are here to help you out. This coordinate geometry is quite an easy chapter if you understand the basics of it. Okay, the first basic is there is a graph paper that is known as the Cartesian plane. You are having a vertical line that is known as the y-axis, a horizontal line that is known as the x-axis. ठीक है, ये दैट इज द होल थिंग ऑफ कार्टेशियन प्लेन. उसमें पॉइंट कैसे मार्क करना होता है, वी आर हैविंग एन एग्जांपल फॉर दैट. लेट अस सी. तो सबसे पहले देखते हैं कि जैसे 3,5 या वैसे कोई पॉइंट होते हैं, लेकिन अभी हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन रियली आते हैं. तो जिन लोगों ने पिछली क्लास पढ़ी है उन लोगों को याद होगा, इन लास्ट क्लास वी हर्ड समथिंग लाइक ऑर्डर्ड पेयर. तो ये जो आप देख रहे हो, इट इज़ एन ऑर्डर्ड पेयर, राइट? ओके, सो ये जो आप पढ़ रहे हो ऑर्डर्ड पेयर है, राइट? तो ये किसके लिए डोनेट करता है? ये एक्स को डोनेट करता है. एंड ये किसको डोनेट करता है? ये वाई को डोनेट करता है. सिमिलरली हेयर ऑल्सो ये एक्स को डोनेट करता है और ये वाई को डोनेट करता है. सिंस दीज टू, सिंस दिस एंड दिस आर डोनेटिंग एक्स ओनली, तो ये दोनों तो आपस में इक्वल होने चाहिए. सो दैट मीन्स 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 9 होना चाहिए. और ये सेम चीज़ को डोनेट कर रहे हैं. सो 2y minus 7 equals to minus 9 होना चाहिए. तो similarly you will solve it and you will get your answer. So this is how first equation. Then x equals to 8/3 and y is equals to 7 minus 9. बेटा जिन लोगों को समझ लिया मैं उनके लिए यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ. सिर्फ इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया है. ओके बेटा, देखो दिखा देता हूँ. 2y minus 7 is equals to minus 9. तो 2y is equals to minus 9 plus 7 और फिर y is equals to -2 अपॉन 2. 2 से 2 कट गया, आपका आंसर आ गया -1. सिमिलरली इसको भी सॉल्व किया गया. पॉज करो वीडियो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो इस वाले को. हमने सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया. इसको एक लीनियर इक्वेशन ही बोलते हैं ना. क्यों बोलते हैं इसको लीनियर इक्वेशन? क्योंकि इसकी पावर क्या है? 1 है. मैक्सिमम हाईएस्ट डिग्री इसकी क्या है? 1 है, इसलिए इसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं. सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD आर गिवन. बाय प्लॉटिंग द गिवन पॉइंट्स फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स A, B एंड D. A, B और D दिए और हमसे बोला गया फोर्थ वर्टेक्स निकालो. तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल जिन लोगों को पॉइंट ग्राफ में पॉइंट बनाने नहीं आता है वो लोग देखो फर्स्ट सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये वाला पॉइंट, लेट मी पुल आउट अ पॉइंट. ओके, सबसे पहले ए पॉइंट ड्रॉ करते हैं. कैसे ए पॉइंट ड्रॉ करना है? 4,2 है. पॉइंट ए क्या है मेरा? 4,2 है. तो कैसे करेंगे ड्रॉ? मैंने बताया ऑर्डर्ड पेयर में ये x होता है, ये y होता है, राइट? तो सबसे पहले आप क्या करोगे आई एम सॉरी, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप x एक्सिस पे 4 चल के जाओगे. तो ये हमने चलना स्टार्ट किया, हम x एक्सिस पे 4 पे पहुंच गए, राइट? फिर अब क्या करेंगे,
वाई एक्सेस पे 2 जाना है, तो मतलब हाइट पे हम कितना जाना है, 2 जाना है, यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो ये आपका ए पॉइंट हो गया, इसीलिए इसको यहाँ पे मार्क कर रखा है, ठीक है। तो ये आपने ए बना लिया। सिमिलरली आप बी ड्रॉ करोगे, ए और बी आपने बना लिया, और डी आपको दे रखा था, आपने डी बना लिया, ठीक है। जब आपने ए बी और डी बना लिया तो अब आप देखो, आपको पता है रेक्टेंगल की ऑल साइड्स इक्वल होती है, वी नो दैट ऑल साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल, राइट। सो हाउ शैल वी प्रोसीड? So see the distance between these 2 points, 4 and 4, but 2 and minus 2. So the gap of 2 is here and the gap of another 2 is here. So 2 plus 2 is 4. So similarly we'll draw a line here with a 4 gap. So the y coordinate will remain the same, sorry, x coordinate will remain the same, minus 2, and here is it plus 2, so it will become minus 2. So आपको आपका C point मिल जाएगा, ठीक है। कैसे किया मैंने, जो डिस्टेंस यहाँ पर थी दैट इज द गैप ऑफ 4, लाइक द 4 यूनिट्स, वही डिस्टेंस मैंने यहाँ भी बना ली, कीपिंग दिस डिस्टेंस इन माइंड, तो मुझे मेरा C कोऑर्डिनेट मिल गया। ये ऑब्जर्वेशन से ही मिलेगा, किसी को लाइक कैलकुलेशन से नहीं मिलेगा। दिस विल लाइक यू विल बी गेटिंग दिस out of observations only, like you will draw these 3 points and then you will connect all of these 3, then you will see that where this point line is intersecting, like you can draw this line, like starting from here you can draw a line till like this, and then starting from here you can draw, so wherever this line will intersect, this will give you your C point, okay। is it clear बेटा? जैसे इसको क्लियर हो रहा है कमेंट बॉक्स में छोड़ो, और कोई भी डाउट है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली वो डाउट क्लियर करूंगा, जो नेक्स्ट सीरीज की वीडियो आएगी इसी सीरीज की, ओके। सो हाउ विल यू प्लॉट अ ग्राफ x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0? अगर आपका x इक्वल्स टू 0 आया या y इक्वल्स टू 0 आया तो आप ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे? जैसे आपका क्वेश्चन आया प्लॉट x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, या फिर x इक्वल्स टू 5, अगर ये ग्राफ बनाने को आया तो आप कैसे बनाओगे, या -5 आया तो कैसे बनाओगे, या y इक्वल्स टू -3 आया तो आप कैसे बनाओगे, ओके। सो उसी के लिए हमारी आगे आने वाली सीरीज है। तो बेटा जब x इक्वल्स टू 0 का ग्राफ है या y इक्वल्स टू 0 का ग्राफ है तो उसका मतलब होता है कि वो कोऑर्डिनेट 0 है। जैसे ये जो ग्राफ आपको दिख रहे हैं ये आपके y इक्वल्स टू 0 का ग्राफ है। जैसे ये जो लाइन है ये बन रही है x इक्वल्स टू -5 की वजह से, ये कोऑर्डिनेट आपको प्लॉट करना था। तो इसमें हम क्या करते हैं, y कोऑर्डिनेट तो 0 है तो हम हाइट में तो कहीं चल के जाएंगे नहीं, हमारे पास और कोई ऑप्शन है हाइट में चल के जाने के लिए? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम x में ही चल के जाएंगे, वी आर मूविंग अलॉन्ग द x ओनली, एंड वी रीच्ड -5, and since you reached -5, so now what only option you are having, either stand there or you can draw a straight line till there, that all the options that are falling in this line is your answer, okay। Similarly this is the graph for -2, this is for x equals to 0, this x-axis, like x equals to 0 is the address of y-axis. Can you understand that? If you are saying x equals to 0, a coordinate of a line in which x is 0, that means y equals to something is the answer of that. So please it is very important, ये याद रखो, x equals to 0 किसका एड्रेस होता है, y एक्सेस का होता है, ठीक है। अब x equals to 1 2 3 4 आप ये देख रहे हैं, ये x equals to 1 2 3 4 है जो a b c d e f g h दे रखा है। अगर मैं आपको सिंपल सी बात देखो ना, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ x equals to 0 तो मतलब ये लाइन तो आपका आंसर हो ही नहीं सकती ना, इसको पूरी तरह इग्नोर कर दो, ठीक है। सो द लाइन दैट यू आर रिमेनिंग विद, दिस लाइन इज योर आंसर, कि x 0 है तो y, all of the y is your answer. Moving along, similarly y equals to 0 gives you the coordinate of x axis. If y 0 है तो आपको क्या कोऑर्डिनेट मिल रहा है, x axis का कोऑर्डिनेट मिल रहा है, ठीक है। This is a question that what is y equals to 0? Y equals to 0 is x axis and x equals to 0 is y axis, ठीक है। नाउ वी आर प्लॉटिंग द कोऑर्डिनेट्स लाइक y equals to 6, if you want to draw y equals to 6 तो आप कैसे बनाओगे, this is your line for y equals 6. If you want to draw y equals 3, so what will be your line? Your line will be like this. This is your line for y equals 3, okay. Similarly you can draw for y equals to 0, that is of course I told you that is the x-axis, and y equals to -4. क्लियर हो रहा है बेटा, इजी लग रहा है ना? ग्राफ प्लॉट करना, इट इज अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर, इसमें कैलकुलेशंस इतनी नहीं है, जो भी काम होगा वो सारा का सारा ग्राफ में ही होगा, ओके। जो भी काम होगा वो सारा का सारा कहाँ होगा, ग्राफ में होगा। इट इज क्वाइट एन इजी चैप्टर, okay। So now we have already learned about linear equations, ठीक है। ग्राफ्स के बारे में समझ लिया, like plotting a point we understood, plotting a line we understood, okay। नहीं, now we are moving on to plotting a line. We understood how to plot a point, now we are understanding how to draw a line, because अगर आपको एक पॉइंट ड्रॉ करना है तो आपको अगर आप क्या चाहिए होता है, खाली उसके ऑर्डर पेयर चाहिए होते हैं, जैसे 3, 4
आप एक पॉइंट बना दोगे। लेकिन जब एक लाइन चाहिए होती है, लाइक इफ यू वांट टू ड्रॉ अ लाइन, यू विल नीड अ इक्वेशन फॉर दैट। इक्वेशन इज एन एड्रेस टू अ लाइन, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अभी और अच्छे से समझते हैं। सो व्हाट इज रियली इज एन लीनियर इक्वेशन? सो अ लीनियर इक्वेशन इज an algebraic equation in which each term has an exponent of 1 and a graph of equation results in straight line. एक algebraic expression वो होता है जिसमें हर टर्म एक एक्सपोनेंट होता है एंड जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनाता है. ओके, लेट मी एन algebraic. ओके, मूविंग ऑन. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन. ईच टर्म हैज एन एक्सपोनेंट. हर टर्म के पास एक एक्सपोनेंट है, लाइक एक्स और वाई सबके पास एक एक्सपोनेंट है. यहाँ पर एक्सपोनेंट 1 है. 1 ही होना चाहिए. अगर 1 नहीं है तो आपकी लीनियर इक्वेशन नहीं है. अभी हम एग्जांपल देखेंगे, आप समझोगे कि कौन सी चीज़ें लीनियर इक्वेशन नहीं होती हैं और स्ट्रेट लाइन देते हैं, जैसे अभी देखते हैं. और वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो एक्स और वाई इक्वेशन में लिखे होते हैं उनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं. 3x को नहीं. जैसे अगर हम पिछली स्लाइड में जाएं तो 3x आपका वेरिएबल नहीं है, x और y आपका वेरिएबल है. ठीक है. और इसमें हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था डिपेंडेंट कौन से होते हैं, इंडिपेंडेंट कौन से होते हैं. जैसे नहीं देखिए पिछली वीडियो, प्लीज देखो जाके. सो x आपके क्या हो गए? वेरिएबल हो गया. जैसे x माइनस, ये आपकी इक्वेशन है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 7, तो x इज योर वेरिएबल. अब प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है? कैसे आप पहचानोगे कि एक लीनियर इक्वेशन है? सबसे पहली बात, उसमें 1 या 2 वेरिएबल ही होते हैं. दूसरी बात, नो वेरिएबल इज अ लीनियर इक्वेशन इज रेज टू अ पावर ग्रेटर देन 1. x की पावर 1 से ऊपर कभी नहीं जाएगी, y की पावर 1 से ऊपर कभी नहीं जाएगी. इफ जा रही है तो लीनियर इक्वेशन नहीं है. जैसे देखो, इनमें से कौन कौन सा लीनियर इक्वेशन नहीं है? क्या पहला वाला लीनियर इक्वेशन है? y की पावर 2 इक्वल्स टू 0 -2 है? नहीं है. नहीं है क्योंकि y की पावर कितनी चलेगी? 2 चलेगी. सेकंड वाला बताओ, इज इट अ लीनियर इक्वेशन और नॉट? इज इट अ लीनियर इक्वेशन? यस इट इज, बिकॉज x एंड y बोथ आर हैविंग द पावर 1. थर्ड वन इज ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन, बोथ आर हैविंग द पावर 1. एंड फोर्थ वन इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन बिकॉज x इज हैविंग अ पावर ऑफ 2. समझ में आया लीनियर इक्वेशन क्या होता है? अब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है? बेटा, इन क्लास 9th एंड 10th यू आर स्टडीइंग द ग्राफ. इन 10th यू विल बी हैविंग द सॉल्यूशंस फॉर इट, कि ग्राफ के अलावा और किस तरह आप इसके सॉल्यूशन निकाल सकते हो. अभी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है वो भी समझते हैं. ठीक है. लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है? जब सिर्फ x होता है इक्वेशन में, जैसे ये 3x plus 5 equals to 0. If in an equation you are only having x variable, that time it is known as linear equation in 1 variable. And when in an equation you are having 2 variables, at that time you will be saying it linear equation in 2 variable. जैसे ये, this is a linear equation in 2 variable. 3x plus 2y equals to 8, 6x plus 8y is equals to 16. Is it clear, beta? Okay. Now let's see what does solution of this mean. कि इसको लिख तो दिया, अब इसका करना क्या है? तो बेटा इसको सॉल्व करते हैं. एक तरह से पहेली है कि ये जैसे 2 इक्वेशन मैंने आपको दे रखी है. आई हैव गिवन यू दीस 2 इक्वेशन, सो इट इज लाइक अ रिडल. सो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दीस 2 इक्वेशन? दैट मींस फॉर व्हाट x एंड y दीस 2 थिंग्स विल गिव अ सॉल्यूशन. क्या x और y होंगे जिसके लिए ये 2 चीजें क्या दें? सॉल्यूशन दें. ओके, आर यू गाइस गेटिंग मी? सो या, so do you have any idea how to solve the system of equations graphically? Okay, so let's see. So कैसे graphically solve कर सकते हैं? So a system of equation is a set of 2 or more equation that are solved simultaneously. एक system of equation है जिसमें 2 और more equation होती हैं जिसको हम simultaneously solve करते हैं. कैसे करते हैं? So solution का मतलब होता है a solution of a system means the 2 equation that you are having is an ordered pair. Ordered pair का मतलब वो ऐसा आएगा solution. अगर आप इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो ऐसा आएगा 3,5. 3 क्या होगा? आपका x होगा दोनों इक्वेशन के लिए, एंड 5 क्या होगा? आपका y होगा दोनों इक्वेशन के लिए. ठीक है. जिसको थ्योरी वाला समझ में नहीं आ रहा है, इरिटेट मत हो. अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ जाएगा क्योंकि प्रैक्टिकल टॉपिक है ना. चलो प्रैक्टिकली करते हैं पहले, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. जैसे ये आपको इक्वेशन दे रखी है. अब मैंने क्या बोला था? ये इक्वेशन एक लाइन का एड्रेस होती है ना, और ये इक्वेशन दूसरी लाइन का एड्रेस होती है. तो पहले 2 लाइन ही बना लेते हैं ग्राफ में. ठीक है. लेट्स सी लाइन कैसे बनते हैं. तो ये आपकी लाइक ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 है ना. तो मैं क्या कर रहा हूँ, लाइन बनाने के लिए आपको कोऑर्डिनेट्स चाहिए ना. एक लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट्स होने चाहिए. 2 पॉइंट को जब आप ज्वाइन करते हो तभी तो एक लाइन बनती है. तो इस इक्वेशन से मैं पहले 2 पॉइंट्स निकाल रहा हूँ. कैसे निकालेंगे? पहले इसी इक्वेशन में आप x इक्वल्स टू 0 रख दोगे तो y इक्वल्स टू 16 आ रहा है. जैसे देखो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 16 में अगर आप x 0 रख रहे हो तो y इक्वल्स टू 16 ही तो आएगा. So this is how you are getting the first coordinate. Second coordinate के लिए आपने क्या किया? x को 2 रख दिया तो y के आपको कितना मिल जाएगा? 14 मिल जाएगा. ठीक है. 2 काफ़ी होते हैं क्योंकि एक लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट ही चाहिए होते हैं, तो 2 काफ़ी हैं. जिसको 4 निकालने वो निकाल सकता है, लेकिन 2
ऑर्डर्ड पेयर एक लाइन बनाने के लिए काफ़ी होते हैं। तो आपका एक कोऑर्डिनेट हो गया 0,16, एक कोऑर्डिनेट आपका हो गया 2,40। ये 2 पॉइंट आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे, फिर उनको ज्वाइन कर दोगे तो आपको ये लाइन मिल जाएगी, ऐसी लाइन। ठीक है, एक आपका 0, कितना था 16 था, एक आपका कितना था 2,14 था। ठीक है, जब आप ऐसे कर दोगे तो आपको ये लाइन मिल जाएगी। फिर आप सेकंड इक्वेशन के लिए सेम काम करोगे। आपकी सेकंड इक्वेशन थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो आपने क्या किया, x को एक बार 0 ले लिया तो आपको y कितना मिला, x को एक बार 2 लिया तो y आपको कितना मिला, -2 मिला। फिर आपने x को एक बार 4 लिया तो y आपको कितना मिल गया, 0 मिल गया। 2 कोऑर्डिनेट्स हमें मिल चुके हैं और हमें कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो जब आप ऐसे करोगे तो यू विल गेट अ सेकंड लाइन। और बेटा ये सेकंड लाइन जहां इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइन, कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, 10,-6, ये आपका आंसर है। और बेटा आंसर का मतलब क्या होता है कि जब आपकी एक इक्वेशन x माइनस वाई थी ना इक्वल्स टू 4, तो अगर आप x, आपका आंसर है 10,6, ये देखो फर्स्ट इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है। आंसर का मतलब ये होता है, इसकी जगह पे जब 10 लिया तो ये आएगा, y लिया तो ये आएगा 4। और सिमिलरली आप जब ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखोगे, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, तब भी वो इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेटिस्फाई करेगा। इसी को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, अब ये तो मैंने आपको 2 इक्वेशन का सॉल्यूशन बता दिया। अब इजी वाले पार्ट पे आते हैं, जो आएगा आपका सिंपल सी बात, एक इक्वेशन दे रखी है, उसके लिए ग्राफ बनाना है। इजी काम है ना, अब तो इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाना। इक्वेशन दी है, एक बॉक्स ऐसा बनाओ, उसमें एक एक करके वैल्यूज चेंज करते रहो। x की वैल्यू 0 रखी, आंसर कितना आया, 3 आ गया बेटा। एंड सबसे इजी पार्ट होता है ये वाला रहने दो, सबसे इजी पार्ट होता है ये, x की वैल्यू 0 रखी तो y 3 आ गया, y की वैल्यू 0 रखी तो x 6 आ गया। 2 कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं, बाकी आपको कुछ टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। 2 कोऑर्डिनेट्स मिले हैं, दोनों को बनाओ ग्राफ में, उनको ज्वाइन करो, यू विल गेट योर आंसर, लाइक यू विल गेट योर स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर ऐसी 2 इक्वेशन दी होती तो उसका मतलब होता है कोई ऐसा सिंगल आंसर ढूंढो जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, लेकिन क्योंकि अभी हमें आंसर ढूंढना नहीं है, हमें सिर्फ लाइन ड्रॉ करनी है, तो इस वजह से ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ड्रॉ अ लाइन, वी ड्रॉ अ लाइन, एंड ऑफ द टॉपिक, एंड ऑफ द क्वेश्चन। ओके, अब देखते हैं ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ दिस लाइन। तो इसमें बहुत इजी, देखो दिख रहा है, x इक्वल्स टू 0 लूंगा तो y कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, -2। y इक्वल्स टू 0 लूंगा तो x कितना आ जाएगा, +2। वीडियो पॉज करो, ग्राफ खुद बनाओ, फिर कंपेयर करना। ओके, सो इस x इक्वल्स टू 0 रखा तो y इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू 1 रखा तो -1 इसमें रखा है, और ये आपका ग्राफ है। ठीक है, ये बॉक्स जैसा जरूर बनाना है, ये हमने आपको समझाने के लिए नहीं बनाया, इसी तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। आर यू गेटिंग इट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जिसको समझ में आ रहा है प्लीज लीव अ कॉमेंट, सो दैट आई कैन नो दैट आप लोगों को समझ भी आ रहा है। ऐसा नहीं होता है कि मैं खाली बोले जा रहा हूँ, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए खुद ट्राई करने के लिए मैंने आपको बता ही रखा है कि इसका इक्वेशन, अच्छा ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ, वरना बच्चे बोलेंगे सर x और y तो कोऑर्डिनेट मिल ही रहा है, मैं तो परेशान हो गया। बेटा आपका सीधे y इसमें आ जा रहा है, y इक्वल्स टू, सॉरी बेटा इसमें आपका सीधे y आ जा रहा है, y इक्वल्स टू 5/2। आ रहा नहीं आ रहा है? तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? अभी इससे पहले वाली स्लाइड्स में समझाया था ना कि अगर आपको सिंगल मिल रहा है y इक्वल्स टू, तो आपका x 0 है, तो इस लाइन का तो कोई काम ही नहीं है, इस लाइन पे कुछ नहीं बनेगा। कहाँ बनेगा? y इक्वल्स टू 5/2, दैट इज 2.5। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और 2 से आधा ऊपर, तो ये लाइन आपकी y इक्वल्स टू 5/2 का आंसर। ओके, एंड बेटा लाइन के ऊपर उसकी इक्वेशन लिखते हैं, जैसे पिछली स्लाइड में समझा देता हूँ। ये जब आप एक लाइन बनाते हो तो उसके ऊपर उस लाइन की इक्वेशन भी लिखी जाती है, ताकि टीचर को पता चल सके कि ये किस इक्वेशन की लाइन है। ठीक है, जैसे आपके घर के आगे आपकी नेम प्लेट लगी होती है ना, तो ये लाइन का एड्रेस है, तो उसके आगे उसकी नेम प्लेट भी तो लगाओगे कि लाइन किस लिए बनी है। जब आप 2-3 लाइन बनाते हो तो टीचर के समझने के लिए ये हेल्प करता है। ठीक है, इसी तरह जब ये वाली लाइन बनाओगे तो क्या बनेगी लाइन, एक बार नीट डायग्राम फिर से बना दूँ? तो चलिए सर डायग्राम तक गंदा बनाते, फिर से हमसे क्या तो समझना है। चलो, सो दिस इज योर लाइन, दिस इज योर नेक्स्ट लाइन। ठीक है, और क्योंकि आपका y इक्वल्स टू 5/2 बन रहा है, दैट इज 2.5 बन रहा है, तो दिस इज योर 1, दिस इज योर 2, एंड दिस इज योर 3, तो समवेयर बिटवीन हियर, तो आपका दिस इज योर लाइन। ठीक है, y इक्वल्स टू 5/2, दिस इज योर लाइन फॉर y इक्वल्स टू 5/2। ये आपका y एक्सेस होता है, जिसको नहीं पता है वो पहली वीडियो जाके देखो कि क्यों ये y एक्सेस है और क्यों ये x एक्सेस है। ये x डैश नहीं होगा, यहाँ पर x डैश होगा। ठीक है, सो गाइज आई होप यू लाइक द वीडियो। ठीक है, अब एक फन फैक्ट देखते हैं, जो आपके जीपीएस है, जिसमें लॉन्गिट्यूड और लैंगिट्यूड, मैंने आपको अभी पिछली क्लास में बताया था कि आपका जो ग्लोब है उसमें जो लॉन्गिट्यूड और लैंगिट्यूड की आप बात करते हो, उसको हमने पूरे
जो ग्लोब है उसको एक कोऑर्डिनेट प्लेन में डिवाइड कर रखा है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स बना के, ताकि कभी कोई खो जाए या जीपीएस से जब आपको देखना हो तो यही कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करके आप चीज़ों को मतलब ढूंढ पाओ, या खुद को अगर खो गए तो ढूंढ लो। तो बेटा आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने रिकॉल किया कि एक ग्राफ में पॉइंट कैसे प्लॉट करते हैं, हमने ये पढ़ा कि एक स्ट्रेट लाइन कैसे बनाई जाती है एक पैरेलल ग्राफ में, और हमने ये पढ़ा कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाया जाता है। ओके, सो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ अच्छा लगा होगा। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने के लिए मैं दे रहा हूँ, पॉज करना, इनको खुद सॉल्व करना, और बाय, दिस इज सागर।